हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मुंबई से मैनचेस्टर। आज हम एफपीएल के बारे में बात करने वाले हैं। हाउ डिड आवर टीम डू लास्ट वीक और गोइंग इनटू गेम वीक 3 जो कुछ ही घंटों में किक इन होने वाला है। क्या ट्रांसफर्स करेंगे, कौन से प्लेयर्स से हमें एक्सपेक्टेशन है कि होपफुली वो हमें पॉइंट्स दे। सो लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू गेम वीक 2 का परफॉर्मेंस। um, अच्छा, गेम वीक 2 काफ़ी अच्छा रहा। 87 पॉइंट्स इन टोटल, -4 लिया था मैंने लास्ट हफ्ते। Overall, some of the big earners or the ones who got me the points were Son, Heung-min Son, Mane, James Rodriguez, and Mitrovic. Double-digit points. Son got 24, Mane got 16, Rodriguez got 12, and Mitrovic got 12 as well. तो काफ़ी रिस्पेक्टेबल, वेल अबव एवरेज 87 पॉइंट्स पे फिनिश किया है। That has brought the overall rank to 960,731. So it's a pretty good climb compared to what was the scene in game week 1. Now, unfortunate part was Egan got a red card, so either I have to fix it or for the next game week, probably bank on say someone like Tyreek Mitchell to actually give me some points, maybe a clean sheet, which would be helpful. तो देखते हैं ट्रांसफर्स क्या करेंगे. सो कमिंग टू द ट्रांसफर्स एट द मोमेंट, I'm thinking of taking out Aubameyang. If you remember, if you see, I had Aubameyang earlier. Arsenal go away to Liverpool, तो वो थोड़ा टफ फिक्चर रहने वाला है. I'm a bit torn. I don't really want to remove Auba. I know he scores goals in big games. तो वो थोड़ा मुझे डिफिकल्ट था. बट सिटी प्ले लेस्टर एट होम, तो Sterling seems like a good choice. Interestingly, he's only owned by 6% of the players. Um, De Bruyne is like close to 40-45%, which is a really high ownership. And I'm again this week leaning towards taking a -4. I had Callum Wilson earlier, and I'm tempted to bring in Patrick Bamford. He did score 14 points and 7 points in the previous week. लीड्स जिस तरीके से खेल रहा है, जितना अटैक कर रहा है, बैमफोर्ड काफ़ी गोल स्कोर करेगा ऐसा लग रहा है. एंड एट द सेम टाइम द नेक्स्ट फिक्चर इज अगेंस्ट शेफील्ड एट शेफील्ड अवे, and then Man City home, Wolves home, Aston Villa away. I feel Leeds इस साल का शेफील्ड यूनाइटेड रहने वाला है, and they have a lot of attackers. They are relentless, and I think it might be worth a punt. If I don't take the -4, obviously my team will stay the same. Callum Wilson, तब भी मेरे बैंक में 0.4 रहेगा. So best case scenario, without taking -4, the only change I'll make is Aubameyang, remove and bring in Sterling, and then eventually play again a 3-4-3 with a back three of Mitchell, Justin, Trent, midfield of Sterling, Mane, Heung-min Son, James Rodriguez, and a front three of Mitrovic, Marshall, and Wilson. Marshall obviously disappointed last week, but Brighton away. If I remember the 3-0 scoreline, I feel Marshall will give us the points. मिट्रोविच का ये फिक्चर काफ़ी इजी है. एस्टन विला होम, ऑब्वियसली फुलम की खुद की डिफेंस बहुत ही बकवास है, तो बट स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग मिट्रोविच टू स्कोर दोज पॉइंट्स. विल्सन के लिए थोड़ा टफ रहेगा. वी माइट जस्ट गेट लकी बिकॉज टॉटनम प्लेड दिस यूरोपा लीग गेम ऑन अ थर्सडे, तो उनका गेम बहुत ही जल्दी आ रहा है ऑन संडे. तो लेट्स सी क्या करते हो. So yeah, that would be my 3-4-3 formation. Mitchell, Justin, and Trent, Sterling, Mane, Son, Rodriguez, and front three of Mitrovic, Marshall, and Wilson.
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद नहीं आया तब भी कमेंट में बताइए क्या एग्जैक्टली पसंद नहीं आया। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। Hey, how's it, guys? Welcome to another episode of Mumbai से मैनचेस्टर। आपने हमारा पिछला वीडियो देखा ही होगा, प्रीव्यू ऑफ द ब्राइटन वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम। इफ नॉट, प्लीज डू चेक आउट। हम लिंक ऊपर डाल रहे हैं। होपफुली यू लाइक दैट कंटेंट। आज के ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एफपीएल गेम वीक 2 का परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल ट्रांसफर्स गोइंग इनटू गेम वीक 3 एंड व्हाट आर द ऑप्शंस शुड वी बी लुकिंग इनटू। ओके, सो डाइविंग इनटू गेम वीक 2 परफॉर्मेंस, काफ़ी अच्छा रहा है। वो वीक का रैंक 463,000 था। 87 पॉइंट्स विद -4 ऑब्वियसली, तो 83। बिग big number of points came actually from Son, Mane, Rodriguez, Mitrovic, and Trent, obviously, and Justin, who gave us decent points as defenders. Um, those all contributed, जिसकी वजह से 87 पॉइंट्स आए हैं। अब देख सकते हैं टायरिक मिचेल फिलहाल बैक टू बैक पॉइंट्स कलेक्ट करे जा रहा है, 6 पॉइंट्स एंड 5 पॉइंट्स इन द लास्ट गेम। अनफॉर्चुनेटली दोनों टाइम वो बेंच पे था। I think with Egan getting a red card, it will be imperative कि टायरिक मिचेल को लाया जाए। Obviously उसका अगला गेम उतना कुछ इजी नहीं है। और ऑल्सो वी कैन सी मैकार्थी गए कुछ हफ्तों से कुछ अच्छा नहीं कर रहा है। लिटरली लाइक 2 पॉइंट फर्स्ट गेम वीक में मिले थे टॉटनम वाले में, तो उनको लिटरली 5 गोल ठोक डाले, तो 0 पॉइंट्स मिले। नॉट दैट आई एक्सपेक्ट अ होल लॉट फ्रॉम गोलकीपर्स, बट या अनफॉर्चुनेटली एफपीएल में कुछ बड़ा बेनिफिट नहीं हो पाता। सो या गेम वीक 1 का परफॉर्मेंस ऐसे रहा है, वेल अबव एवरेज। आप इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम अराउंड, my ranking was somewhere in the 3.5 to 4 million, with 87 points last week. 960,000 तक आ चुका है रैंक, होपफुली क्लाइम होते रहेगा। सो गेम वीक 3 में जाते हुए एग्जैक्टली ट्रांसफर ऑप्शंस क्या है हमारे। स्पेसिफिकली अगर मेरी बात की जाए तो आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग ऑफ Aubameyang. Obviously Arsenal go away to Liverpool. काफी टफ फिक्चर है। Auba can score and it might backfire. But I'm sort of banking on Arsenal not doing well. You never know though. And removing Auba, I'm bringing in Sterling. ओनरशिप बहुत ही कम है स्टर्लिंग की, 6% है कंपेयर टू केडीबी, ऑलमोस्ट लाइक 40-45% है। And I'm planning to um, keep okay. हाँ, स्टर्लिंग वो एक, सो स्टर्लिंग एक चेंज है। आई एम टेम्प्टेड टू टेक अ -4 and bring in a striker who will give me more points than Callum Wilson. Callum Wilson is playing Spurs away, and last game वो हार चुके हैं। I'm not sure मोराल कैसा रहने वाला है, but I'm tempted to bring someone like Patrick Bamford, जिसको लाके में आई थिंक आई कैन स्टिक हिम इन द टीम एज अ decently priced, not too highly priced, and a player who will most likely start a bunch of games. Leeds did bring in Rodrigo, but currently Bamford का form must चल रहा है। 7 points in the first game week, 14 in the second, and Leeds attack बहुत कर रहा है। I think they're going to be the surprise package this season. So yeah, I'm thinking of taking a -4, as you see. Uh, थोड़े लोग अगर आप लोग अगर मिडफील्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बजट ऑप्शन चाहिए, तो पोडेंस, वुल्स के फिक्चर्स बहुत अच्छे हैं, अपकमिंग फिक्चर्स। आई आई वाज रियली टेम्प्टेड टू एक्चुअली ब्रिंग इन हिमेनेज और पोडेंस। हिमेनेज को अगर लाना होगा तो आई हैव टू रिमूव मार्शल, एंड ऑब्वियसली यूनाइटेड प्ले
Brighton away. I'm hoping like a 3-0 score line or something like that in that game where Marshall provides the goals and assist. तो फिलहाल मैं उस पे बैंक कर रहा हूँ. पर हाँ, पोडेंस जो अटैकिंग पोजीशंस ले रहा है, इज अ रियली गुड ऑप्शन. येमेनेज, अगर आप बुल्स के फिक्चर्स ओवरऑल देखें तो बुल्स के फिक्चर्स सब ऑन पेपर बहुत अच्छे हैं. वेस्ट हैम अवे, फुलहम होम, लीड्स अवे, न्यूकासल होम, क्रिस्टल पैलेस होम. सो आई थिंक एक्चुअली डिफेंस में भी अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो प्रॉब्ली गो फॉर अ वुल्स डिफेंडर. और कौन सी टीम? सो थिंकिंग अबाउट फिक्चर डिफिकल्टी रेटिंग, एवर्टन ऑब्वियसली दूसरी एक टीम है जिसके फिक्चर्स काफी अच्छे हैं. क्रिस्टल पैलेस अवे, ब्राइटन, साउथहैम्पटन अवे. थिंक एवर्टन से कैल्वर्ट लूइन, अगर आप इफ यू कैन मैनेज, व्हाई नॉट. उसको अभी सर्विस बहुत अच्छी मिल रही है. अगर आपके पास हामिस रॉड्रिगेज नहीं है तो ऑब्वियसली दैट्स अनदर गुड ऑप्शन. एंड डिफेंस में डीन, लूकस डीन तो ऑब्वियसली सबका फेवरेट है. फ्री किक भी लेता है और ही कीप्स ऑन अटैकिंग. बट अगर चीपर डिफेंडर चाहिए तो सेमस कोलमन राइट साइड पे खेल रहा है, इज कैप्टनिंग द टीम, तो ही इज अ रियली गुड ऑप्शन. स्पर्स के फिक्चर्स भी काफ़ी अच्छे हैं. ऑब्वियसली आपके पास अगर ये प्लेयर्स नहीं है स्पर्स के, सॉन और केन या डॉर्टी, I wouldn't bank on Doherty. 6 million something for a defender and Spurs defender currently when they are not doing that well. So I'd stick to Son or Kane. So yeah, Everton, West Brom, Everton, Spurs or um, Everton, Spurs or तो yeah, Everton, Spurs, then क्या करो. Yeah. तो guys, yeah, as I said, Everton, Spurs, Wolves के fixtures बहुत अच्छे. If you are trying to make any changes, I would say yeah, go with those players. Wolves में Jimenez, Podence बहुत अच्छा option है. Roman Saiz if you want to invest in defense. Spurs में फिलहाल तो Kane and Son के अलावा सोचना थोड़ा, I won't go beyond that, beyond these two players. Phenomenal game last week. So obviously you can bank. Son का थोड़ा doubt है because he played the whole 90 minutes like on Thursday and he has to play the next game on a Sunday. So I don't know how that is going to pan out. Hopefully he still starts. उधर थोड़ा मुझे मतलब I'm afraid he might not. तो obviously points कम हो जाएंगे. एंड एवर्टन के केस में तो मैंने बताया आपको जैसे पहले भी, रॉड्रिगेज, हामिस रॉड्रिगेज, कैल्वर्ट लूइन, अगर इफ यू लुकिंग फॉर अ स्ट्राइकर, बजट स्ट्राइकर. ऑब्वियसली प्राइस बढ़ गई है उसकी, 7.3 हो गई है अभी. होपफुली स्टिल अफोर्डेबल फॉर अ लॉट ऑफ यू. सो yeah, those are some of the suggestions for game week 3 transfers. For me, as I said, Sterling is the only transfer I'm thinking besides Bamford for a -4 in the worst case scenario. I might not go for that Bamford transfer. So, anyways, guys, I hope you like the content. I hope the inputs that जो हम दे रहे हैं आपके कुछ काम में आ रहे. So yeah, if you like the content, please do share, like, and subscribe. Thank you.